Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. I am Saad Munir Malik. I am DGM Accounts and Finance in UIC. Our CFO, Mr. Maqbool Ahmed, is here with us. Thank you very much, you all who have joined the corporate briefing session. I would like to start from the introduction of the company. First of all, I would like to state that this is a presentation is for information purpose only, and nothing to do with it has nothing to do with the offer for sale of shares or anything else. Our briefing session has two major components. First is the company brief, and second one is financial performance of the company. Our company is part of United International Group, which also consisted of various companies which are showing in front of you on screen. They are involved in tracking services, construction services, and software development services. Company was formed in 1959. Our CEO, Mia M.A. Shahid Saab, is our group chairman, and he is holding major shareholding in the company. Company has branches all over Pakistan. More than 150 branches we are operating in all over Pakistan. Our company rating is AA+, which shows our strong capability to meet our financial liabilities. Our rating is announced by PACRA and VIS. Vision statement. Our vision is to become the first choice for our customers. Our mission is to adopt insurance technologies, global requirements, and the regulatory requirements to ensure better insurance services. Company has reinsurance arrangements with the prestigious reinsurers all over the world. Swiss Re, Korean Re, Hanover Re are the major shareholders in our reinsurance arrangements. Our corporate governance, company is following corporate governance requirements of provided by the and guidelines issued by the SECP. We have seven directors, two independent directors, two are executive directors, which also include one female director, and three are non-executive directors. Board is performing its duties through board and management committees. Our group chairman, Mia M.A. Shahid Saab, is also a chief executive officer of UIC. He is holding a very vast knowledge about the information and banking sector, and he is leading UIC to the highest level of growth. Renowned and experienced bankers and insurers are part of UIC board of directors. Mr. Ashraf Khan Saab is the chairman of the company. All members are highly qualified, well experienced in their fields. Our major segments, operating segments are fire insurance, which we are offering are fire insurance, marine insurance, motor, health, travel, and the miscellaneous segment. Miscellaneous segment is our key revenue segment, which is consisted of crop insurances, credit and surety insurances, health insurances, and personal accident insurance. Our Islamic segment is Window Takaful Operations, which was formed in 2014. And we are offering Islamic Sharia compliant products since 2014. We are the first license holder of the Window Takaful operations in Pakistan. Geographic presence, हम पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट रीजन में परफॉर्म कर रहे हैं. इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ऑल मेजर सिटीज़ में हमारी ब्रांचेस हैं और वो अपने कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं.
अब हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप लोगों को। हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल इस साल तकरीबन 5 बिलियन है, जिसको हमने अभी इम्प्रूव करना है और हम इसको 7 बिलियन तक लेके जा रहे हैं। पेड अप कैपिटल हमारा 4.16 बिलियन है। हमारी जो टोटल इक्विटी है वो 6.9 बिलियन है, और जो एसेट बेस है वो हमारी 21.8 बिलियन है। जो 2025 के हमारे जो की मेजर हाइलाइट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं कि हमारे एसेट्स में 19% का इंक्रीज हुआ है। द मेजर इंक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यूज एंड टर्म डिपॉजिट्स एंड री इंश्योरेंस रिकवरीज अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। एंड इस साल हमारा एक चेंज आया था इसमें कि SECP ने रिक्वायर किया था कि आपने PTF के एसेट्स यानी कि जो विंडो तकाफुल ऑपरेशंस में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कन्वेंशनल के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनाना है, वो हमने इस साल उसको बनाया। और हमारा पेड अप कैपिटल और टोटल इक्विटी में प्रॉफिट और बोनस शेयर्स में इशू होने की वजह से इंक्रीज आया। हमारा ग्रॉस प्रीमियम इस साल 10 बिलियन है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम इसमें होपफुल हैं कि हम इस साल इसको अपने 13 बिलियन या 15 बिलियन तक तकरीबन हो जाएगा 2026 में। तो ये 4 साल का, इसमें 5 साल का कंपैरिजन आपके सामने, हम 6.5 बिलियन से तकरीबन 13 बिलियन या 15 बिलियन तक 26 में क्लोज करेंगे। इसमें जो हमारे दो मेजर सेगमेंट्स हैं, कन्वेंशनल ऑपरेशंस हैं और तकाफुल ऑपरेशंस हैं। तकाफुल ऑपरेशंस जो है हमारा 2014 से वर्किंग कर रहा है, तो 2021 से तकाफुल ऑपरेशंस में हमारे 2.1 बिलियन पे हम स्टैंड कर रहे थे एज अ ग्रॉस प्रीमियम पे, और इस साल हम 1.6 बिलियन पे स्टैंड कर रहे हैं, और 2026 में इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करेंगे अराउंड 2 बिलियन 2.4 बिलियन के करीब। और कन्वेंशनल ऑपरेशंस में हमने 5 बिलियन से ग्रोथ की है 2021 से, और हम उसको 10 बिलियन पे इंशाल्लाह 13 to 15 बिलियन पे इंशाल्लाह 2026 पे क्लोज करेंगे। अगर हम आपको सेगमेंट वाइज बताएं तो इसमें हमारा जो ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादातर मिसलिनियस हमारे ऑपरेशंस हैं, जिससे हमारा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो 4.8 बिलियन है इस साल का। और इसी तरह फायर में 872 मिलियन है, मेरीन में 412 बिलियन है, और मोटर में 1.2 बिलियन है, क्रॉप में 996 मिलियन है। नेट प्रीमियम हमारा माशाल्लाह कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ में है। 2021 में ये 2.7 बिलियन पे था, इस साल हम 5.4 बिलियन पे इसको क्लोज किया है, और हम होपफुल हैं कि 2026 में हम इसको मज़ीद बेटर परफॉर्म करेंगे। अंडरराइटिंग रिजल्ट्स हमारे की यानी ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट्स हैं हमारे, और माशाल्लाह हम इसमें 2021 से अगर आप इसका टेबल देखें तो हम इसमें 950 मिलियन से 2.4 बिलियन जो हमारे की ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं उसको प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम 2.4 बिलियन पे स्टैंड कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट ही आएगी 2026 में भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2025 में स्लाइट उसमें डिक्रीज था, चूँकि लास्ट ईयर थोड़ा हमारी इनकम भी ग्रॉस प्रीमियम में डिक्रीज हुआ था। हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2.7 बिलियन, तो 2025 में हमने 2.3 बिलियन पे क्लोज किया है, और अब चूंकि हमारी जो अगली एस्टिमेशंस हैं 2026 की, वो हम होपफुल हैं कि हम 15 बिलियन तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे अपने प्रीमियम को, तो उसी 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 लिहाज से हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी अराउंड 2.7 बिलियन के या 2.8 बिलियन तक रहेगा। ये हमारे जी की फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे। इसमें मैंने अपने तौर पे काफ़ी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हों तो हम उसको आंसर करने के लिए रेडी हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन आया था मिस्टर अली की तरफ से। उन्होंने हमें से पूछा कि आपने पेड अप अपना ऑथराइज कैपिटल जो है वो क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी बोनस शेयर इशू किए थे, तो हमारा जो पेड अप कैपिटल है वो 4.6 बिलियन पे है। तो अब जब ऑथराइज नेक्स्ट ईयर हम इशू करेंगे या कोई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में हमने स्टॉक डिविडेंड देना होगा तो हमारा ऑथराइज कैपिटल मैच्योर हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि पेड अप कैपिटल हमारा इंप्रूव हो, और हमारे साथ साथ जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं पेड अप कैपिटल से रिलेटेड वो भी मीट होती रहेंगी। सेकंड सेकंड उनका क्वेश्चन था इंक्रीज का जी, इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रिसीवेबल्स में, कि वो इंक्रीज हो रहे हैं और लोन्स एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं।
तो वो इंक्रीज हमारा नॉर्मल इंक्रीज है जो पे रिसीवेबल्स होते हैं कस्टमर से। तो उसमें जैसे जैसे प्रीमियम राइट होता है तो वो बाज़ दफ़ा अगर लास्ट क्वार्टर में राइट हुआ है तो उसकी जो अमाउंट्स हैं, प्रीमियम के अमाउंट्स हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स में भी आ सकती हैं और मुख्तलिफ क्वार्टर में भी आती हैं। तो इसलिए वो इंक्रीज़ बहुत नॉर्मल है। तो होपफुल है कि हम इसको कंट्रोल करके हम इसको मिनिमम साइड पे लेके जाएं ताकि कोई इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अब फर्दर किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम आंसर के लिए रेडी हैं। थैंक यू। हेलो हेलो जी कौन सा बताइएगा। हेलो जी आपको आवाज़ आ रही है। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली इज हियर। जी अली साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र सर। ये दो क्वेश्चन मैंने किए थे जिसका आंसर तो आपने दे दिया सर। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं कुछ अरसे से, तो इसके बारे में, इसको रिड्यूस करने के हवाले से आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? अगर आप इसमें देखेंगे अली साहब तो ये रूटीन लाइबिलिटीज हैं जो इंक्रीज हैं, जैसे क्लेम से जी रिलेटेड लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ टैक्सेस की लाइबिलिटीज हैं, तो वो साथ साथ मीट हो रही हैं। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस इंक्रीज होगा तो जाहिर है कंपनी की एसेट बेस जी और लाइबिलिटी बेस में चेंज आएगा। तो वो रूटीन जी नॉर्मल चेंज है, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम देखें कि जो इक्विटी में और लाइबिलिटीज में एक बैलेंस होता है ना, अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए तो इक्विटी में और लाइबिलिटीज में काफी डिफरेंस है। अगर 5 बिलियन की हमारी इक्विटी है तो 10-15 बिलियन का हमारा लाइबिलिटीज में जा रहा है। अ, इस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा मैं इसमें बताऊं कि अगर तो हम नॉर्मल रूटीन में अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल रेशियो को देखते हैं तो आप समझते होंगे कि हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। तो चूंकि इंश्योरेंस का जी जी फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसमें यहाँ पे करंट एसेट्स के बारे में शो नहीं होता। लेकिन अगर वैसे हम अपनी वर्किंग के हिसाब से आपको बताएं तो हम इस वक्त जो है वो जी। हमारा करंट एसेट रेशियो वो पॉजिटिव है, 1:1 है, जो कि बहुत अच्छा है। सही। अगर आप ठीक ठीक। एनालिसिस में देखें तो वो बहुत अच्छे करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो है। तो उसको हम इक्विटी से मैच करने की बजाय अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखें तो वो ज़्यादा बेटर जी। रहेगा। और दूसरा मैं ऐड अप ठीक ठीक। करता हूँ अली साहब, मैं मकबूल बात कर रहा हूँ, सीएफओ ऑफ द कंपनी। अगर आप जी इसमें जी देखेंगे सर, तो जी सर। इंश्योरेंस के जो अकाउंट्स होते हैं वो बाकी इंडस्ट्री से बिल्कुल थॉरोली आपको देखेंगे ना इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो जी हमारी जी लाइबिलिटीज आप जो कैसे कह रहे हैं रेज हो रही है या इंक्रीज कर रही है, तो लाइबिलिटीज जो होती है वो प्योरली प्रोविजनल होती है। आप इसमें देखेंगे डेफर्ड ओके। कमीशन आ रहा होगा, डेफर्ड प्रीमियम आ रहा होगा, अनअर्न्ड प्रीमियम है, अनअर्न्ड कमीशन है, उसके बाद प्रीपेड जी जी आपको इंश्योरेंस मिलेगी। तो ये बिल्कुल प्योरली बाकी सारी इंडस्ट्री से डिफरेंट होते हैं। तो उस पोर्शन में आप जाकर देखेंगे तो आप आपकी बात ठीक है कि जी वो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और जो हमारी जो जी equity वाली साइड है वो उसमें ह्यूज डिफरेंस है। जबकि ये जी प्योर वो करंट लाइबिलिटी वाला सिनेरियो नहीं होता। ये आप कह सकते हैं लॉन्ग जी टर्म वाला, जब प्रोविजनल बेस पे जो होती है ना लाइबिलिटीज वो इंक्रीज कर रही होती है। और इसका दूसरा इम्पैक्ट आप ठीक। देखेंगे तो जैसे जैसे आप बैलेंस शीट की फुटेज देखते हैं कि अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही होती हैं तो वहाँ पे एसेट्स भी आपको उसी तरह इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसी साइड में जी आप देखेंगे तो हमारे जो फिक्स एसेट होंगे तो प्रोविजनल कुछ एसेट्स भी होते हैं जो प्रोविजनल आ रहे होते हैं। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, अगर पार्ट ऑफ प्रीमियम अगर आप लेंगे तो वहाँ पे जो प्रीपेड इंश्योरेंस आती है वो भी बेसिकली प्रीमियम का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो एक फॉर्मेट है, एक प्रोविजनल अकाउंटिंग चल रही होती है, तो उसी वजह से दोनों साइडें जो है ना वो इंक्रीज कर रही होती है। उसमें करंट लाइबिलिटी जी। वाला जो पोर्शन है वो आप जैसे सर ने आपको बताया कि उसको आप देखेंगे तो हमारी जो करंट रेशियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बेहतर पोजीशन में। सही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी और अगर किसी पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन हो तो हम मेरा ख्याल है फिर और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा सेशन अटेंड किया। जी इंशाल्लाह। मेहरबानी सर। थैंक यू। थैंक यू अली साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।